Now we will continue with the properties of absolutely continuous function. If f is absolutely continuous function, then f has a derivative almost everywhere. We already know from the previous property that f is absolutely continuous, means f is a function of bounded variation, and by the Jordan decomposition theorem, f is expressible as a difference of two monotonically increasing functions. And by Lebesgue theorem that we have done earlier, then g and h are differentiable almost everywhere. Therefore, f is differentiable almost everywhere. Next is, every absolutely continuous function is a bounded function. So we know that absolute continuity implies bounded variation of a function on the closed interval a to b, and every function of bounded variation is a bounded function. Therefore, f is bounded on the closed interval a to b. Now we will continue with the next theorem. Let f, this is the next property, you can say this is one of the next property of absolutely continuous function. If f be a function of bounded variation on the closed interval a to b, then f is absolutely continuous on the closed interval a to b. If and only if, अब देखो हमारे पास था absolute continuity implies bounded variation, but bounded variation may or may not imply absolute continuity, right? So यहाँ पे अब if and only if का relation दे दिया, f is absolutely continuous कब होगा? Bounded variation function absolutely continuous कब होगा? जब एक वेरिएशन फंक्शन है, if it is defined as a total variation of the function f from the interval a to x. आप इसको कैसे पढ़ेंगे? Total variation of the function f over the interval a to x is absolutely, अगर वेरिएशन फंक्शन एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस होगा तो f एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस है, अगर f एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस है तो वेरिएशन फंक्शन एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस है. अब जो काम, जो एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन आप f पे लगा रहे थे वही vf पे लगाएंगे. लेट f vf बी द एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस फंक्शन. सो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि जो अब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन एफ पे लग रही थी, वही हमने अब किस पे अप्लाई करनी है? वीएफ पे. सिर्फ फंक्शन की फॉर्म चेंज हो गई है, वही एप्सिलॉन, वही डेल्टा, वही फाइनाइट कलेक्शन, वही पेयर वाइज डिस्जॉइंट इंटरवल्स फॉर व्हिच दिस सम इज लेस देन डेल्टा. दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस, नाउ दिस सम for the functional values of the variation function is less than epsilon. ठीक है, मॉडुलस वैल्यू, राइट? So now we will calculate what is variation of this and this. क्या बनता है ये? उन्होंने फॉर्मूला हमें पहले दे दिया कि ये वेरिएशन का फॉर्मूला है. So a to xi dash minus a to xi. So here is a, here is xi and here is xi dash, right? अब a इसमें से, राइट, इसमें से इतना माइनस कर दिया तो कितना बचा? ये वाला हिस्सा बचा. तो ये वेरिएशन बन गई टोटल वेरिएशन फ्रॉम xi टू xi डैश. तो बेटा ये टोटल वेरिएशन जो है ना, ये सुप्रीमम को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, जितने भी आपने इंटरवल्स लिए, उन इंटरवल्स का जो, जब हमने फंक्शनल वैल्यूज का डिफरेंस निकाला, उसका जो सम की जो सुप्रीमम वैल्यू आ रही है एक पार्टीशन के अकॉर्डिंग, वो टोटल वेरिएशन को रिप्रेजेंट करती है. एक्चुअली टोटल वेरिएशन फ्रॉम द इंटरवल a to b, this is equal to supremum summation I running from 1 to n f of xi minus f of xi minus 1. ये इसको, और सुप्रीमम किस पे वेरी कर रहा है? p के ऊपर वेरी कर रहा है. ठीक है,
सो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास अब ये सुप्रीमम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सेट, सो सुप्रीमम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन पर्टिकुलर मेंबर, फॉर ऑल आई वांट टू दिस होना। सो देयरफॉर अब यहाँ से इसको हमने पहले लिख लिया और इसको हमने बाद में लिख दिया, फिर सम अप कर दिया हमने आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, और हमें पता है कि इट इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया। सो प्रूव क्या हो गया, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n f of xi dash minus f of xi is less than epsilon whenever this is less than delta. So f is absolutely continuous on the closed interval a to b. देखो ये पढ़ा था, ठीक है जी, ये पढ़ा था, ये प्रूव करना था। आप फर्स्ट लाइन में ऐड कर सकते हैं स्टार्टिंग में, लेस देन एप्सिलॉन फॉर समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n xi dash minus xi mod लेस देन। अब उल्टा ये लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे और ये टू प्रूव करेंगे, दिस इज टू बी प्रूव्ड। So absolute continuity की definition लगा दी, we have a finite collection, same exactly that. Now to prove, यहाँ पे you can add to prove summation I running from 1 to n bf f of xi dash minus b of f xi, its mod is less than epsilon. Now अब हमने क्या किया, पार्टीशन ले, क्योंकि for each i, हर एक i के लिए देखो ये पार्टीशन आ रही है, when you will put the value p1 के corresponding क्या आएगा, x1 a01 less than a11, ये सिर्फ पार्टीशन के पॉइंट्स हैं, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए x1 डैश, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑलरेडी एक क्लोज्ड इंटरवल a to b की पार्टीशन थी एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी के लिए, जो फाइनाइट कलेक्शन उठाई आपने x1 to x1 डैश, ठीक है, x2 to x2 डैश, और यहाँ पे जो थी xn to xn डैश, अब उसकी पार्टीशन की है, इसकी पार्टीशन का नाम p1 है, इसकी पार्टीशन का नाम p2 है, इसकी पार्टीशन का नाम pn है, क्योंकि आई रनिंग फ्रॉम 1 to n चल रहा है। अब जितने भी इनमें पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स का नाम क्या है, ये इन सारे पॉइंट्स का डिफरेंस करके सम लिया, वो किसके बराबर आएगा, वो इस पूरे इंटरवल की लेंथ के बराबर आएगा, ठीक है। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, जब उनका पार्टीशन के जो पॉइंट्स हैं, जब उनका लेंथ का उनकी लेंथ निकाल के उनको ऐड किया, तो अल्टीमेटली बेटा टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल ही आएगी, दैट्स व्हाई दे हैव रिटन xi dash minus xi फॉर ऑल i रनिंग फ्रॉम 1 to n। अब वेरिएशन आई के साथ कर दी इसकी, ठीक है, दोनों तरफ आई की वेरिएशन कर दी, ये तो ऑलरेडी क्या है, लेस देन डेल्टा है। सो नाउ बाय नंबर टू देखिए क्या था, ये टू था, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n f of xi dash minus f of xi is less than epsilon। तो अब हमने जो xi डैश सेटिस्फाई कर रहा है, xi डैश और xi सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो हमने पॉइंट्स लिए हैं, उन पॉइंट्स के जो इंटरवल बन रहे हैं, वो भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n बाहर निकाला, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक्चुअली क्या आ गया, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n समेशन j रनिंग फ्रॉम 1 to mi aj minus aj minus 1i its mod, right, it is less than delta। अगर पॉइंट्स के लिए रिजल्ट होल्ड हो रहा है, तो उनकी फंक्शनल वैल्यू के लिए भी रिजल्ट होल्ड होगा, दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी ऑफ f, यही लिखा है इन्होंने, it is less than epsilon, so you can write over by definition of absolute continuity for f, right। Now वो कह रहे हैं fixing the collection C but varying the partitions PI of each interval, जैसे अभी आपको बताया कि हर एक इंटरवल की क्या की पार्टीशनिंग की हमने, we have upon taking the supremum over all such partitions PI। तो अब हमने क्या करना है, सारे की सारी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर्टिकुलर एक पार्टीशन के अकॉर्डिंग सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही कह रहे हैं कि जब हम पार्टीशंस को वेरी कर देंगे और जब हम इसका सुप्रीमम ले लेंगे, ठीक है जी,
When we will take the supremum of this, तो ये बन जाएगा total variation from xi to xi dash f, which is less than epsilon. So can you imagine कि जब हम इस पूरे का supremum ले लेंगे, ये बन जाएगा total variation from xi to x of the f function f, which is less than epsilon. So, and what is the total variation? The total variation xi to xi dash, it is expressible as the variation function variation function at the point xi dash minus variation function at the point xi, right? And this is less than epsilon. So therefore, this we want to prove that the variation function is absolutely continuous on the closed interval a to b if f is absolutely